جی بولیے میں لاتی ہوں. جی تو یہ کئی جو حدیث اس طرح کے ملتے ہیں جن میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہے جان بوجھ کر یا جانے میں یا کسی حساب سے رسول اللہ کا کریکٹر اسیسینیشن جیسا کیا جا رہا ہے. تو آپ اس بات سے کس حد تک متفق ہیں یا آپ اس سے اتفاق نہیں رکھتے؟ تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بھائی کیا نام ہے اس کا، جو موسٹلی حدیثیں میری جب میں ایسی حدیثیں پڑھتا ہوں نا جس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے کریکٹر اسیسینیشن بھی ہو سکتی ہے یا کس طرح، تو میں اس کے پیچھے سچویشن کو اپنا لے آتا ہوں، سوچتا ہوں کہ غالباً جس سیٹنگ میں یہ بات کی گئی ہوگی یا جس اس میں مطلب کہ کیا نام ہے ایٹماسفیئر میں یا جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہاں کی یہ ضرورت کے مطابق، اس سچویشن کی ضرورت کے مطابق گھڑی جا سکتی ہے. اچھا یہ کیا ہے اپنا اس کو یہ ہے کہ the sun rises between two horns of Satan، یا سورج جو ہے وہ شیطان کے دو ہارنز کے بیچ میں سے نکلتا ہے، سینگوں کے درمیان میں سے اگتا ہے. سینگوں کے درمیان سے. the two horns of Satan rise with it, and when it has risen, Satan parts from it. اس کے شیطان کے سینگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ نکلتے ہیں سورج کے، اور جب وہ سورج نکل آتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے. when it is in the middle of the sky he accompanies it, then when it has crossed the zenith he parts from it. جب وہ سورج آسمان کے بیچ میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ سورج اس سے اتر جاتا ہے سب سے اونچی جگہ سے تو شیطان اس سے چھوڑ کے سورج کو چلا جاتا ہے. when it is about to set he accompanies it، جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ چلتا ہے. and when it has set he parts from it. so do no pray at this 3 times. تو جب شیطان اس کے سورج کے ساتھ ہو تو آپ اس ٹائم پر نماز نہ پڑھیں. یہ کیا بھائی کیا چیز ہے؟ اچھا اس کا یہ مطلب تھا کہ جو شیطان ہے وہ سم ہاؤ سورج کو لانچ کرتا ہے، وہ اس کا لانچنگ پیڈ ہے، سینگوں کے درمیان سے رکھ کے وہ آگے بڑھتا ہے. جب وہ سورج درمیان میں لے کے پہنچتا ہے اپنا ہائی جب رائس ہوتا ہے اور اس سے نیچے کی طرف گرنا شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ظہر کے ٹائم کے سے تھوڑا سا پہلے، اور اس کے بعد جب وہ اپنا دوبارہ سے نیچے اتر آتا ہے سورج تو وہ پھر اس کو اپنے سینگوں میں پھنسا لیتا ہے، اور وہ جب تک اس کو لے کے وہ نیچے اتر نہ جائے تو یہاں سے وہ اس کو کوئی بھی نماز اس ٹائم میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی کہ ان 3 ٹائم نمازوں میں 3 ٹائم پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ حاجی بھائی میں یہاں پہ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. اچھا یہ جو نارتھ پول کی ابھی بات ہو رہی تھی، کرشنا نے بات کی تھی، تو یہ جو شیطان ہے یہ 6 مہینے تک نارتھ پول پہ سورج لے کے کھڑا رہتا ہے. بس میرا میں یہ سوال یہیں پہ پہنچنے لگا تھا، میں ایگزیکٹلی یہیں پہ پہنچنے لگا تھا. آپ اپنا ذرا مائک میوٹ کر لیجیے کیونکہ آپ کی پیچھے سے بہت آواز آ رہی ہے. ہاں جی. تو مطلب کہ اس طرح کی اب حدیثیں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ سچویشن کے تحت ہے. ہاں جی. اور میرے خیال میں جتنا ان لوگوں کو سمجھتے تھے، امیجنیشن کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی امیجنیشن کو وائلڈ رن کرنے دیا ہے، اور جس کے حساب سے جو سمجھ آ رہا تھا اس کے، کیونکہ عام آدمی جب ہم کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم اس کے پیچھے ریزن ڈھونڈتے ہیں کہ یہ ایسا کیا چیز ہے جو یہ کام کر رہی ہے. اگر آپ کو نہیں مطلب کوئی چیز نظر آ رہی لیکن وہ چیز ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور اس کے پیچھے آپ کچھ نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں کہ یہ ہو کس طرح رہی ہے، تو آپ اسی وقت کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کی ریزنز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ ایک شیطان جو ہے وہ سورج کو اپنے سینگوں میں پھنسا کے اوپر کی طرف چڑھاتا ہے اور اس کو نیچے کی طرف لے آتا ہے. تو ایز گاڈ ریالٹی مینشنڈ اٹ، کیا نام ہے اس کا، کہ اس طرح تو پھر نارتھ پول میں یا اپنا الاسکن سائڈ یا اسکینڈینیوین کنٹریز ہے نا اس سائڈ پہ،
यूरोप में मेरा ख्याल, कौन सी कंट्री है? और नॉर्वे वगैरह काफी आर्कटिक सर्कल हाँ में। जी, आर्कटिक मतलब उस तरफ है। तो वहाँ तो फिर अपना सूर्य, अपना शैतान जो है वो अपने सींगों में सूर्य के आगे 6-6 महीने खड़ा रह के थक जाता होगा, तभी तो वो 6 महीने के लिए सोने चला जाता है। ये सोचने वाली बात है कि अलग अलग ये जो दूसरी डिफरेंट टाइम जोन्स हैं उसमें अलग अलग शैतान बातें कर रहा है, ये क्या और यू नो इट्स अलग अलग चीजें हो रही हैं डिफरेंट टाइम जोन्स में, इसने सोचा ही नहीं था अल्लाह मियां ने। एग्जैक्टली। हाजी साहब, इस पर मेरे को 2-3 सवाल इस हदीस से रिलेटेड है, तो आप इजाजत देंगे मैं उनको आपके सामने रखूं और आप मुझे को वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दें? जी जी। हाजी साहब, पहला मेरा सवाल ये है कि शैतान के जो सींग है, दोनों सींगों के दरमियान सूरज आ जाता है, तो अमूमन हमने ये पढ़ा है कि सूरज हमारी जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है साइज में, तो खुद शैतान का साइज क्या रहा होगा? पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये कि जब शैतान को भी कहा गया था कि आदम को सजदा करो, तो आदम साहब को वो सजदा किस जगह खड़ा होकर उसने किया होगा या उसे करना था जिससे उसने इनकार कर दिया? तो आप ये 2 सवाल जरा मेरे को वाजे कर दीजिए कि जो सूरज है वो तो हमारी जमीन से 1.3 मिलियन टाइम बड़ा है, तो शैतान का खुद का साइज क्या रहा होगा? मैं तो, आप शैतान, पूरे शैतान की साइज की बात कर रहे हैं ना? हाँ जनाब, पूरे फुल शैतान के साइज की बात कर रहा हूँ। जब उसके सींग इतने बड़े हैं तो उसका खुद का साइज क्या रहा होगा? मैं तो आपके साइज की बात सुन के मैं बेचारे शैतान की बीवी के ऊपर मैं हैरान हो रहा था कि व्हाट अ लेडी शी वाज। अच्छा, सो एनीवे, क्या कहते हैं उसको, ये बात सोचने वाली है कि इतना बड़ा अगर शैतान मतलब कि सूरज लेके खड़ा हो सकता है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो अपना वो तो बेशक दूसरी गैलेक्सी में भी शैतान होता या दूसरे उसमें किसी यूनिवर्स में होता तो शायद हमें यहाँ पे नजर आ रहा होता इतना बड़ा शैतान होता। तो हाजी साहब, अमेरिका ने ये जो वॉयेजर वगैरह इतने सारे स्पेसशिप छोड़े थे जो आपके यूरेनस, नेपच्यून की तरफ, जुपिटर की तरफ गए, उनमें से किसी ने भी एक भी फोटो शैतान के सींगों की नहीं भेजी कि भाई शैतान के इस तरह के सींग हैं और इस तरह से ये शैतान है। तो इस अभी इंडिया ने भी जो है ये चंद्रयान और मंगलयान वगैरह भेजे हैं, तो क्या ये कैमरे इस केपेबल नहीं है? और दूसरी चीज ये कि अगर जो शैतान के सिर के बीच में सूरज होता है और सूरज का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, तो शैतान की जो खाल है वो खाल किस मटेरियल की बनी है? क्योंकि अमूमन हम जानते हैं स्पेसशिप की आउटर जो लेयर होती है वो उस पर हीट ऑब्जर्विंग खास तरीके की टाइल्स लगती हैं जो बहुत ज्यादा हीट को भी जो है एब्जॉर्ब कर सकती हैं, क्योंकि जब वो हमारे ये जमीन के एनवायरनमेंट से जब निकलते हैं तो फ्रिक्शन होता है उसमें, वो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। तो शैतान मियाँ को ऐसी कौन सी खाल बख्शी गई है जो इतना टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेती है? बिल्कुल सोचने वाली बातें हैं ये सब, आप अच्छी बातें कर रहे हैं। मतलब कि अगर तो आप हदीसों पे सब जितने लोग हमारे दोस्त हैं, मुसलमान दोस्त हैं जो हमें सुनेंगे भी और अपना सुन भी रहे होंगे, तो उनके लिए लम्हा फ़िक्र है कि आप ये सोचिए कि ऐसी ऐसी अपना ये उसके अंदर छोड़ी गई हैं, लंबी लंबी लपेटने वाली छोड़ी गई हैं हदीसों के अंदर, कि अगर ये तो वाकई रसूलुल्लाह इस तरह की बातें कर रहे थे तो वो रसूलुल्लाह ही था, मतलब कि हम क्या कह सकते हैं। हाँ जी। तो अच्छा हाजी साहब, इस पे एक सवाल और भी आता है। हम 2-3 दोस्त हैं वो अक्सर बात करते हैं जब इस हदीस पे कि एक तरफ हमें बताया जाता है कि सूरज शाम को गंदले पानी के तालाब में डूब जाता है, फिर वापस उगता है। अब वो डूबने के बाद तो वो ठंडा हो जाता है, तो फिर वो वापस जो है उसकी जो एनर्जी होती है, उसका जो कोर का जो टेम्परेचर है वो तो 10 करोड़ डिग्री है, और जो बाहरी बिल्कुल आउटर लेयर है वो भी 6000 डिग्री के आसपास बताई जाती है। तो फिर वो इतनी हीट कैसे पाता है? कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे वो दोबारा ऐसा गर्म हो जाता है? वो अल्लाह मियाँ फिर सारी रात बैठ के उसके अंदर गैस भर के सुबह जला के भेजता है ना। हाँ जी। वो जो हाजी भाई वो नहीं है हदीस है शायद कि अल्लाह के तख्त के नीचे जाता है तो वो हीट जो है अल्लाह के तख्त में से देता है। अब पता नहीं अल्लाह पता नहीं पाता है या पूछता है क्या करता है जब वो इतनी हीट हो जाती है।
राइट, आपकी आवाज रियलिटी गॉड रियलिटी बहुत बहुत खराब आ रही है somehow. तो हाजी साहब, दरअसल बात ये है कि हम जब हदीसों के बारे में पढ़ते हैं तो जो है और एक फिरका होता है जो अपने आप को अहले कुरान कहता है कि हम सिर्फ कुरान मानते हैं, हम हदीस को नहीं मानते, तो Right. उनको लोग मुनकर हदीस कहते हैं। तो एक सवाल ये है कि बुखारी साहब ने 6 लाख हदीसें जमा करी और कोई 7-1 हजार उन्होंने हदीसों को अपनी किताब में शामिल किया, तो क्या खुद बुखारी साहब सबसे बड़े मुनकर हदीस नहीं माने जाने चाहिए? ये एक लास्ट सवाल है, इस पर आप आपकी राय दे दीजिए, फिर जो है आप आगे चलिएगा। मैं इजाजत चाहूंगा आपसे, तो आप जी ये जरा वाजह कर दीजिए ताकि और कॉलर को भी मौका मिले क्या, और राइट, बिल्कुल। आपसे देखो आप जो है पीछे लाइन बहस लगी उठा हुई है, सकें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर मुनकर हदीस सबसे पहले माना जाना चाहिए तो सबसे पहले क्या नाम है इसका, जो बुखारी था उसको माना जाना चाहिए, जिसने 6 लाख हदीसें रिजेक्ट करके जी कुछ 6 लाख अपना क्या नाम है 6,000 उनमें से सिर्फ चुनी। आप अंदाजा कीजिए कि उसके पास इतनी लंबी लाइफ किस तरह हो सकती है कि वो 6 लाख हदीसों को लेके और वो उनको पहले कंगालता रहा और उसके बाद सिर्फ 6,000 हदीसें उसने पिक की। उसके पास उसकी ज़िंदगी में इतना टाइम ही नहीं हो सकता कि आप 6 लाख हदीसों को कंगाल सकें। अगर आप अंदाज़ा अगर जमा तफरीक भी करते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में इतने मिनट नहीं होते जितनी हदीसें उसने वो कर दी हैं, छानबीन ली जी है। बेशक, ठीक है ना, जी जी तो इसमें मेरे को जी कोई शक नहीं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं कृष्ण भाई, थैंक यू वेरी जी, मच। बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप साथ रहिएगा, जब आप अपना कोई और बात आए तो आप जरूर तशरीफ लाइए। जी अच्छा जी मुन्ना जी भाई, जरूर, बहुत शुक्रिया। ओके ओके बाय बाय।